Hello student, welcome to YouTube channel of Sacred Heart School. Today we will start the chapter number 2, that is polynomials. Student, you studied your previous class the definition of polynomials and the types of polynomials. But this is your syllabus in your class 10th. So I will recall the topic polynomial. Okay? First of all, I am going to start the definition of polynomials. An algebraic expression of the form px is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus and so on up to an x to the power n is called a polynomial where a0, a1, a2, a3 and so on up to an are any real numbers. यहाँ पर a0, a1, a2, a3 and so on an जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है. For example, 2x minus 3, y square minus 2y plus 5, 2x cube plus 5x square minus 3x plus 8, y cube minus 8, under root 3x square minus 8x plus 2 under root 3, etc. are polynomials. These are the some examples of polynomial. There are two examples which shows that they are not polynomial. y x square plus under root 3x plus 5 and x plus 1 upon x plus 3 and the last is x to the power 1 upon 4 plus x minus 8 etc. are not polynomials. Student, you know well, an algebraic expression in which the powers of variable must be a natural number like 1, 2, 3, 4 and so on is called a polynomial. मतलब इस तरह के algebraic expression जिसमें variable की power एक natural number होना चाहिए like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. इस तरह के algebraic expressions को हम polynomial कह सकते हैं. But you can see here that this variable is under the square root. और you know well the square root means अगर हम किसी भी नंबर पर ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है 1/2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर वेरिएबल की जो पावर बन रही है वो आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन बन रही है. तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. सेकंड पर हम बात करते हैं x प्लस 1 अपॉन x. आप ये भी जानते हैं कि वेरिएबल ये अपॉन में दिया गया है और किसी भी वेरिएबल को जो अपॉन में लिखा है हम इसको x टू द पावर -1 लिख सकते हैं. तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर एक नेगेटिव नंबर हो जा रही है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. एंड द थर्ड एग्जांपल इज x टू द पावर 1 अपॉन 4. यहाँ तो आप क्लियर देख रहे हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो एक रेशनल नंबर है और हमने आपको पहले बताया कि इस वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली ए नेचुरल नंबर, सिर्फ एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही डेसिमल नंबर होना चाहिए. यानी वेरिएबल की पावर जो है इस तरह के नंबर्स नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो,
तरह के जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, now we discuss on the next topic, that is degree of polynomial. Student, you have studied in class 9 what is the degree of polynomial, but I want to recall it. In a polynomial, the highest power of variable is known its degree. For example, किसी भी polynomial में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 इज 3। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। Degree of 2y to the power 4 minus 5y plus 8 is 4. Here you can observe that the highest power of variable is 4. So the degree of this polynomial is 4. Okay. Now the third example is degree of 9 is 0. किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज 0 होती है। क्यों, कैसे? 9 को हम राइट कर सकते हैं इस तरह से x to the power 0. You know when the value of x to the power 0 is 1. So 9 into 1 means 9. So the degree of 9 is 0. Okay. Now the next topic is types of polynomials. ये टॉपिक भी आपने अपने क्लास 9 में स्टडी किया है और इसको भी मैं रिकॉल करूंगा, बट इसका जो एक पार्ट है उसको मैं रिकॉल नहीं करूंगा। पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। हम क्लास पॉलिनोमियल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओरली मैं इसको आपको समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, जिसमें एक टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2x, माइनस 3y, 4p, 60, etc. नाउ सेकेंड टाइप इज binomial. Binomial is a polynomial in which there are 2 terms. एक ऐसा polynomial जिसमें 2 टर्म होंगी उसको हम binomial कहेंगे। For example, x plus 3, y plus 4, x square minus 8, etc. are the binomials. Now the third is trinomial. A polynomial which have 3 terms is called a trinomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x माइनस 8, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3, etc. are the trinomials. And the last is क्वाड्रिनोमियल। जो लास्ट है वो क्वाड्रिनोमियल है। ए पॉलिनोमियल इन विच देयर आर 4 टर्म्स। एक पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हो उसको हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टर्म ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 एंड y³ माइनस 3y³ माइनस 2y माइनस 16, etc. are the example of quadrinomial. अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल में 5 और मोर देन 5 टर्म्स हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको जनरली हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। बस 4 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके,
ये रही सब आपकी प्रीवियस क्लासेस की बात है। नाउ अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे द जो सेकेंड सेकेंड जो टाइप है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंगली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. The standard form of linear polynomial is px is equal to ax plus b, where a and b are any real numbers, but a is not equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो आपकी वेरिएबल टर्म भी 0 हो जाएगी, और जबकि वेरिएबल होना किसी भी पॉलिनोमियल में कंपलसरी है। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x minus 3y, 2x minus 1, y plus 3 etc. आर लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो 1 है, तो हम इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, नाउ the second type is quadratic polynomial. A polynomial whose degree is 2. एक polynomial जिसकी डिग्री 2 होगी, उस polynomial को हम quadratic polynomial कहेंगे। The standard form of a quadratic polynomial is px is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए। a, b and c are any real numbers. यहाँ पर a, b and c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। Now the third type is cubic polynomial. A polynomial of degree 3. एक polynomial जिसकी डिग्री 3 हो, इस तरह के polynomial को हम cubic polynomial कहेंगे। The standard form is px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। यहाँ भी हम ये कहेंगे कि a is not equal to 0, क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो आपका इतना पोर्शन बचेगा जिसको आप क्वाड्रेटिक कहेंगे। और क्वाड्रेटिक वाले केस में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गई टर्म तो आपका ये पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ भी a, b, c and d are any real numbers. For example, 3x cube, y cube minus 27, x cube minus 2x square plus 5x plus 8 etc. are cubic polynomials. Okay. Now the last, that is fourth type of the polynomial according to the degree is बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा और इसको नोट भी कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, हम इस तरह के पॉलिनोमियल को बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। For example, x to the power 4, y to the power 4, x to the power 4 minus 3x cube plus 3x square plus 2x minus 8 etc. are the some examples of the biquadratic polynomial. Okay, I hope that you well understood the types of the polynomials. However, these portions are in your previous classes you have studied about these types, and also the types of according to the number of terms। इन दोनों टाइप्स को आपको क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बट बिकॉज in your syllabus the chapter 2 is polynomial, so it is compulsory for me and for you that I recall it. This portion is not compulsory to write, because this portion
study by you in class 7, 8 and 9 also. Okay. So I think that you have well understood the topic and the related topics of this chapter, and kindly you have to complete the work which I have done today, and revise these portions and learn the definitions also. Okay.